So hello and a very good evening YouTube. No, evening nahi, it's actually afternoon, and as you can see both my babies are right here in front of you. तो Goldwing, I know सिर्फ खाली झलकों में दिख रही. The bike is still not complete yet. There's still a lot of work to be done. A lot of stuff is stuck in customs, but I'd say 60 to 70% of the work is done. And you all know कि जब तक गाड़ी complete नहीं हुई मैं reveal नहीं करता हूँ, क्योंकि अपना इसका हर चीज़ में नुक्स निकालते. But there's a lot of stuff that has to be explained about this. खैर इसका बाद में. Right now the topic of discussion is this: my Interceptor 650. My Interceptor 650. तो हल्की हल्की बारिश हो रही. प्लान तो नहीं था, लेकिन अब कल व्लॉग शूट नहीं कर सकता मैं बिकॉज कल चले जा रही गाड़ी. So let's take her out and continue. So earlier I have already done a video on this bike, slight walk around kind of thingy, जिसमें मैं गाड़ी के थोड़े बहुत mods ये वो discuss करा. इसमें भी थोड़ा बहुत करूँगा. But then this video is mainly about my personal 15,000 kilometer, actually 15 nahi, let me just check, 14,725 kilometer review of this bike. So let's go. So as you all know, लॉकडाउन काफ़ी परेशान करके रखा था सबको, एंड अब उससे अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या हुआ आपका है. बेसिकली इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एवरीवन हैज़ सीमिंगली बिकम क्वालिफाइड डॉक्टर. तो एवरीबडी सीम्स टू नो अ लॉट अबाउट द वायरस. जैसा चेरनोबिल रिलीज़ हुआ जब सब न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बन गए थे, अब ये कोरोना हुआ जब से सब जने डॉक्टर बन गए. तो एनीवेज, माई रिव्यू. So first of all, let me begin by saying कि Royal Enfield का literally कोई हाथ नहीं था इसमें. All they did was invited me and a couple of people for a press launch back in December 2018. That was when I first rode the bike and I was like, fuck it, मेरे को लेना है. And Enfield being Enfield and the Indian motorcycling thing being the Indian motorcycling thing, सब जने बड़े बड़े डाले वहाँ पे, मैं भी लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. Ultimately nobody ended up buying it, and I got the bike. Mine was delivered in March, and Enfield की तरफ से अपने को ना कुछ डिस्काउंट मिला ना nothing. And not that I'm complaining, but just to let you guys know कि this is my complete honest review, ownership review of the bike. ऐसा नहीं कि मेरे को गाड़ी दिए चलाओ और तारीफ़ां करो type, which is how it works. So, and I've modded this bike like inside out over 3-4 times. So let's begin by what all I love about this motorcycle. Number one, the feel, man. The feel. अब वो feel ऐसी चीज़ है अपन समझा नहीं सकते. The way you sit on the bike, the way you ride the bike, it feels like a miniaturized Triumph Bonneville and a British Twin, that classic British Twin sound. Firing order is not like the Triumph, but still nevertheless it manages to sound pretty awesome. And the burbling sound which you get, वो twin exhaust की आवाज़ somehow मेरे को उतनी समझ में नहीं आ रही थी. So I got the 2-in-1 full system. उसके अंदर एकदम beautiful sound है गाड़ी की. Let me just, it pops and gurgles and spits and it's kind of really sweet. अभी अपन ज़्यादा कहीं दूर जाने वाले नहीं है because बारिश भी हो रही, तो हमारे गलियों का राउंड मार के मैं बता दे रहा हूँ. So I use this bike for a lot of highway trips. The first one was when I did the Bombay back in June, July. There was peak monsoon के time पे मैं बॉम्बे गया था during the Mumbai floods of last year, and trust me, इतना मज़ा आया मेरे को. And on the way back I had an MT-01 as my company. I shot a lot of videos, but जब से अपने को ज़रा इंटरेस्ट कम हो गया था तो I didn't upload much, but some footages I have uploaded right here, as you can see. तो it was really great. I गाड़ी खरीदते कि immediately, because after riding the Indian in 2018 I was like मेरे को एक गाड़ी पे सिस्टम होना. So I got the Boss audio system on it. Electricals worked perfect because wiring तो अपन ही करे, but the load this bike gives out, alternator का इसका output बहुत ज़बरदस्त है. So that kind of really helped me out with a lot of accessories. It had auxiliary lamps, and also that was like the highway tourer kind of setup.
उसके बाद से आई डिसाइडेड आई वांटेड टू डू समथिंग मोर सीरियस। अपन ऑलमोस्ट $800 स्पेंड करके मरीन एंक्लोजर्स मंगाए, किकर के, उसमें किकर के स्पीकर्स डाले, केनवुड का एम्प डाले, ब्लूटूथ कंट्रोलर डाल के, यू नो द बाइक साउंडेड अमेजिंग, द म्यूजिक सिस्टम वाज लाइक क्रेजी, सामने दो पीछे दो करके। एंड विद दैट सेटअप आई रोड टू गोवा IBW एंड दैट वाज अगेन अ वेरी फन राइड। एक 636 बूसा, ये पूरे बड़े गाड़ियों के साथ। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, दिस थिंग इज प्रीटी स्टेबल ऑन द हाईवे मैन। आई मीन because of the 18-inch wheels and all, it feels pretty stable. It doesn't, you know, इधर उधर नाचती नहीं। और गाड़ी पे अगर आप कोई छिछोरे हरकतें करना चाह रहे, जैसा व्हीली मारना है या कुछ पावर स्लाइड्स या कुछ भी करना है, सो द बाइक यू नो करती है ऑब्वियसली, बट द बाइक काइंड ऑफ टेल्स यू कि नाको ना बाय, यू नो इट डजंट लाइक बीइंग रिडन दैट वे। दिस इज मोर ऑफ भगाओ या आराम से जाओ काइंड ऑफ थिंग। एंड कमिंग टू द मॉड्स, आई इंस्टॉल्ड लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर मेन थिंग वाज वेट रिडक्शन। तो गाड़ी एकदम लाइट वेट हो गई, साउंड ऐसा हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द यू नो लाइट वेट एंड द 2-in-1 एग्जिट, द पावर डिलीवरी ऑफ द बाइक चेंज्ड क्वाइट अ बिट। ऑलरेडी इसमें काफ़ी लो एंड पावर था, ऊपर पे थोड़ा कम था, बट नाउ द लो एंड इज़ क्रेजी, बट टॉप एंड तो पूछो ना कोई। यू कैन यू नो पहले रेड लाइन करना दिल नहीं बोलता था, बट नाउ यू जस्ट फील लाइक रेड लाइनिंग द बाइक। Sounds very addictive. उसके अलावा द हाईवे माइलेज वाज क्लोज टू 30. आई मीन amazing boss. Literally I have had no complaints with this bike apart from the cone set issue, जो कि बहुत जनों को आता था, handle just starts wiggling around. And उसके अलावा the front wheel speed sensor kind of went kaput 1 or 2 times. तो ये स्पीडो की नीडल ऊपर नीचे मार लेते रहती, but then Enfield guys, they're very sweet, the service is really nice. आपको फ़ोन आ करते, बुलाते, फॉलो अप करते, एकदम परफेक्ट सर्विस बैकअप है। तो यू नो आई डोंट रियली नो व्हाई अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल दे क्राइंग आउट, यू नो एनफील्ड इज़ नॉट रियली नोन टू गिव आउट फ्रीबीज। और क्या है, आजकल के इन्फ्लुएंसर को फुकट के चीज़ों की इतनी आदत हो गई कि अब बोलना गाड़ी खरीदे या कुछ भी भाई, तो लोगों को फुकट का कुछ भी नहीं मिल रहा बोले तो गांड जलती। I don't know if that's the case or what, but I've seen a lot of videos on YouTube, इन लद्दाख में नहीं जा रही, नहीं कर रही, इसको वो नहीं हो रहा, इसकी क्वालिटी वो है। अरे बॉस, तुम्हारे को 3 लाख रुपए में इतनी ज़बरदस्त गाड़ी दिया मैंने, समझे ना। वही तुम्हारे को कावासाकी वाला 7 लाख रुपए में पैरेलल ट्विन दिया, तो तुम जाते चाटते तारीफां भी करते, अम्मा ये गाड़ी जन्नत से भिजाए, ये वो बोल के पिंडे के बातें करते। यू नो एन इंडियन मैन्युफैक्चरर हैज़ डन सो मच, अमेजिंग प्राइसिंग, आपको गाड़ी दिया, आप लेके एक 10-20 हज़ार रुपये लगाओ भाई गाड़ी के ऊपर, यू मेक इट योर ओन। नाउ आई चेंज द अलॉयज, आई डिडंट गो फॉर 17-inch wheels because this is not a drag race or something। मैं कोई दूसरी गाड़ी लेता हूँ ऐसे काम करना है तो, यू नो आई वेंट फॉर द अलॉयज बिकॉज मेरे को स्पोक व्हील्स और ट्यूब टायर से कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं। नॉट टू मेंशन रोड ग्रिप ज़बरदस्त है, नो डाउट, बट स्टिल ट्यूब इज समथिंग आई नेवर रियली लाइक्ड, यू नो काइंड ऑफ, यू नो द लेसर द रब द बेटर। उसके अलावा यू नो आई चेंज द मास्टर सिलेंडर, बट ऑनेस्टली आई चेंज द मास्टर सिलेंडर बिकॉज यहाँ पे स्पीकर बैठ रहा था एक बड़ा, जो कि यू नो रेडियल मास्टर सिलेंडर वाज सूटेड टू दैट, वो एक्सियल वाले को उन्हें टच हो रहा था। नॉट बिकॉज आई फेल्ट एनी प्रॉब्लम इन द ब्रेकिंग अमेजिंग है भाई, गाड़ी को स्टील ब्रेडेड लाइन्स दिया। ये अपने छू इन्फ्लुएंजा को ये भी नहीं मालूम स्टील ब्रेड लाइन क्या रहता बोल के, वही बोलते ना गधे को ज़ाफ़रान की क्या। अरे देखो इनको देखो बैगन की मेरी, यू नो एवर सिंस द लॉकडाउन इज काइंड ऑफ लिफ्टेड, रोड पे ऐसे पायलटा नहीं कर रहे, फट रही गाड़ी चलाने मेरी तो, क्या भाई कौन किधर से आके पप्पी देता समझ में नहीं आ रहा। So yeah, this is absolutely an amazing machine. I have no problems with the bike at all. I have no complaints. I mean, if I could, I'd keep this bike forever now. Everybody, सब जने मेरे को बोलते ज़ोहर भाई तुम गाड़ी को इतने पैसे लगाते, इतना सब बनाते, इतना सब करते, मगर 6 महीने 1 साल जैसा होता तुम बेच देते। फिर बोलते ये गाड़ी तो भी नक्को बेचो भाई। फिर मैं बोलता हूँ ये तो होगा, ये तो होगा। You know, because this time, honestly, देखो भाई लॉकडाउन हैज़ गॉट ऑल ऑफ अस यू नो अफेक्टेड इन अ लॉट ऑफ वेज ऑब्वियसली। एंड अपन दो गाड़ियाँ ये वो, एज यू ऑल नो आई स्पेंड क्वाइट फ्रिवलसली, आई डोंट स्पेंड फ्रॉम माई यूट्यूब मनी। लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है भाई, यूट्यूब पे जाके खरीद ले रहे हो, निखिल ऐसे बड़े यूट्यूबर कर सकते हैं भाई, हमारे ऐसे गरीब लोगों को था कोई ऑप्शन नहीं, अपना रोजी रोटी दूसरे चीज़ों से चलती तो अपन ये शौक को कर लेते सोए। So you know a lot of things took a hit this time, and you know cash crunch आ गया काफ़ी, so obviously I have to sell this bike because अब anyways
बारिश हैं, राइडिंग सीजन कम हो गया, एंड देन अगेन having two kind of relaxed cruisers. Now this is kind of a street cruiser kind of bike, बट स्टिल दोनों भी रिलैक्सड गाड़ियाँ, तो ज़रा मेरे को बुढ़ी फील भी आ रही थी, तो आई थॉट एक गोल्ड विंग रख लेंगे, बाद में कोई एक अच्छी 5 ब्लेड 1000 ऐसा कुछ ले लेंगे ज़रा एक 3-4 महीने के बाद, ज़रा हाथ फ्री हुए बाद से. बट अंटिल देन यू नो दिस वाज जस्ट सिटिंग अराउंड, ज़्यादा चला रहा हूँ भी नहीं मैं, अभी सिटी की कम्यूट भी काफ़ी कम हो गई मेरी, सो यू नो आई थॉट लेट्स जस्ट गिव इट टू समवन मोर वर्दी, एंड एज यू ऑल नो मैं गाड़ी देते हो पूरे मॉड्स के साथ दे देता हूँ, सो हूएवर बाइज द बाइक फ्रॉम मी दे आर रियली हैप्पी, यू नो जैसा वैसा अपने को ज़ोहर ZS स्पेक मिल गया बोल के. सो या, and a guy is coming down from Warangal tomorrow as we speak. He's gonna come and take the bike, so the bike's going to Warangal most probably. That's what's happening. उसके अलावा द टेल लाइट, अभी छोटे छोटे चीज़ें जैसा गाड़ी में टेल लाइट्स और इंडिकेटर चिंदी टाइप के हैं, ठीक है भाई, आपको 3 लाख में और क्या क्या देंगे, क्या गाड़ी के साथ आपको जोरू भी होना है, you take it, you know there's a lot of aftermarket scene. अभी मैं अच्छे उसको पीछे DRL type, you know like a Harley Iron 883, I got those tail lamp removed, and you know got the brake lights and all done up in the indicators themselves. Then I have these sequential LED turn signals, I don't know if you can see them right there, and सामने भी DRLs है, LED की headlamp है, so you know आप गाड़ी को you make it your own, stop complaining so much. These influencers, अब कावासाकी वो imported brand दबा के पैसे देते तो ना कुछ भी कचरा निकालो. अब recently you know BMW F900R launched, you know 13-14 lakh X showroom for a fucking parallel twin. ठीक है भाई, BMW होगा, ब्रांड नेम होगा, कुछ भी होगा, बट देन पीपल आर गोना ऐसी तारीफ करते हैं उसकी जैसा कि जन्नत से खुदा खुद भेजे वो गाड़ी. यू नो हर गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं फॉर द प्राइस टू परफॉर्मेंस कोशेंट, एंड ट्रस्ट मी एनफील्ड मेरे को पैसे भी नहीं दे रहा है ये चीज़ बोलने के, हालांकि देता था तो बहुत अच्छी बात रहती थी भाई. बट अमेजिंग बाइक, अमेजिंग बाइक, एंड दे सेलिंग प्रीटी वेल, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड US में भी, बिकॉज मेरी एक दोस्त रहती है US में, शी टोल्ड मी कि भाई यहाँ पर ट्रायम्फ को टक्कर में दिस थिंग इज सेलिंग लाइक क्रेजी हॉट केक्स. एंड उसके अलावा ओवरऑल द क्वालिटी, लॉट ऑफ पीपल से यू नो रस्टिंग ये वो, अब तक तो 1 year 15,000 kilometers ऑफ ओनरशिप, आई चेंज द प्लग्स, आई यूज़ मोटल ऑयल, मेरे को कुछ भी इंजन शैसी ये वो कोई चीज़ से कुछ ऐसा कंप्लेन ना, इलेक्ट्रिकल इशू, नथिंग. एंड मे बी 2-3 साल और रखे तो होंगे, बट देन इट्स अ मशीन बॉस, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यू नो. इंसान में जितने खराबियाँ रहती है तो मशीन है, खराबी तो निकलती. व्हाट मैटर्स इज एनफील्ड इज़ गिविंग एकदम क्रेजी कस्टमर सर्विस, आपको घर पे से भी पिक एंड ड्रॉप करते रहे गाड़ी ना, अगर बोले तो आप ज़्यादा हो रहा तो. सो यू नो दैट वे द बाइक इज़ प्रीटी सॉर्टेड. दैट बीइंग सेड, I did a lot of crazy highway runs on this because बीच में I was staying in Anantapur, 3-4 बार अप डाउन मारा मैं, crazy speeds with this spec, you know all lightweight and all, fucking stable, 130-140 पे बिंदास मार लेते जा सकते आप, the brakes everything it works so perfect, you know मज़ा आ जाना बस गाड़ी पे आपको. and especially the sound man, the sound, you just feel like रेस देना छोड़ना और ये बर. You know, as I'm growing older, I kind of, you know, inline 4, inline 6 ये से ज़्यादा मेरे को एक twin cylinder engine की आवाज़ ज़्यादा पसंद आ रही. You know, that's why Ducati sells so much. The shitty bikes, no doubt, but then the twin cylinder का जो बर रहती ना, that roughness kind of makes you feel एकदम और crazy. So, you know, that's there. So, all in all, summing it up, I'm gonna miss this bike so much. But then obviously बाद में एनफील्ड वाला कुछ और बड़ी निकाला तो अपन वो भी लेंगे बाद में लेटर ऑन. एज ऑफ नाउ ज़रा हार्ट टाइट हो गया, गोल्ड विंग ये, फिर ऊपर से मेरा एक जिप्सी का भी प्लान है. सो यू नो ऑल दैट करते हुए ज़रा ओवर हो जा रहा. सो आई थॉट व्हाई नॉट, फॉर नाउ लेट्स जस्ट सिट साइलेंट फॉर अ व्हाइल. दैट्स अबाउट इट गाइज. सो 1 year ओनरशिप, मोर देन 1 year actually, little over a year. Amazing bike, literally no complaints, one of the best bikes I've ever owned. And you all know कि मैं नए गाड़ियाँ कभी ख़रीद तो ही नहीं, but you know this is something I bought from the showroom. Literally no complaints at all, perfect bike. Whoever wants to go for this, please, Leo zabardast gaadi hai. The twin is crazy, it's not that expensive to maintain, that's the best part. Parts are cheap, service is good, service is all around the country, and you know, so yeah, I'm gonna really miss you Interceptor 650. और ये पिंडे के बाहर के इन्फ्लुएंस ज़्यादा अच्छे रिव्यू डाला यार, वहाँ की गिरी तुम लोगों को ज़रा 4 पैसे कहीं भी मिलते ही जाके उन लोगों की चाटते तुम ना, ज़रा अनबायस्ड रिव्यूज़ दिया करो वहाँ क्या है. और ये क्या कि नई कंट्रोवर्सी भी चल रही कहते टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ना अपन यूट्यूब के साइड है ना अपन टिकटॉक के साइड है. तो बहुत जल्दी हम मेरे को वीडियो दोनों की फाड़ते हुए, क्योंकि यूट्यूबर हम भी उतने पानी में उतरे हुए, क्योंकि हम देखे हुए, हमको मालूम है किसका कैसा हिसाब रहता है दुनिया में. याद रखो बेटा, पैसों के अलावा कोई चीज़ से नहीं चलती दुनिया. पैसा एवरीथिंग इज अबाउट मनी.
So we'll make a video of that next, and the Gold Wing mods and all. Hopefully ज़रा time मिलते गए जैसा काम से, you know, I'm gonna make more videos. For now लेट्स गो बैक होम. पीछे गाड़ी को फेंडर एलिमिनेटर लगा हुआ है, तो ऑलरेडी मेरी पीठ पूरी पिंडे में मिल गई कीचड़ उछल के. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड आई एम गोना मिस यू रॉयल एनफील्ड. और यारो एनफील्ड चलो जान दो, तुम फुकट का नहीं तो नहीं, ज़रा कस्टमरों को तो कुछ तो भी दिया यारो. पिंडा गाड़ी में टैंक फुल भी करके नहीं दिए थे तुम्हारे बॉयज़, देते वक्त पिंडे की मेरी. ओ माई गॉड, bye-bye. Oh my god, is that a Jeep Wrangler? Wow, sunset tarqi color ah boss. Sounds so sweet man. पार्किंग बड़ी करना पड़ता, अब पोलो को बाहर रख दिया मैं पिंडा.